वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान जो कि आई हैव नोन हर फॉर well over a year, and when I got to know of her, so I knew this vibrant animated young girl who I knew for a fact, ये इस चीज़ को वाउच करेंगे इस बात को कि who I knew was going to be a superstar of the future, and surprisingly fate का करना ऐसा हुआ कि within a year माशाल्लाह से she is now not just a superstar. I mean, I think there's a word beyond that as well, with I think 1.4 million followers. Dananir Mubin, thank you so much for being part of the show. Thank you for having me. अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं दनानीर कि कैसा फील हो रहा है? हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. कहाँ से शुरू करूँ? It has been a roller coaster of emotions for sure. I think ये तो सबको ही एक अंदाज़ा होगा, सबके सामने ही है जो भी हुआ. One thing I really want to highlight is that the entirety of the process, इतना प्यार, इतनी अप्रिसिएशन, एक अनकंडीशनल लव, तो एक जो एक जनरल ओवरऑल जो वाइब थी ना, वो बहुत बहुत प्यार की थी. तो द जर्नी वाज अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस फॉर श्योर, लेकिन अ कांस्टेंट फीलिंग वाज ऑफ लव, ग्रैटिट्यूड, एंड आई वाज हम्बल्ड बियॉन्ड बिलीफ कि मतलब एवरीथिंग दैट हैड हैपेंड वाज अनरियल. वाज आई हैड नेवर इमेजिन्ड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ भी anything near to this would happen to me. Right? So it's been crazy. It's been a good crazy, and I'm beyond grateful and humbled with everything that has happened. Yeah, definitely. And I think इसके बाद we're gonna go into more detail as well. But I think जो मेरे लिए when I was studying your journey, जो post blow up journey थी, there were a lot of for the first times, and there was a lot of commentary as well कि ये क्या कर रही है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. मैं लोग यही कहता भाई, this has never happened before. Like, this is the first time in history this is happening. This history being made. The way that when it went beyond borders, even within Pakistan, the way that you went viral, I don't recall. I've been on social media since 2005. I don't recall कि that is a very long yes time. कि ये exactly क्या I haven't seen anything like this happen before. इसी के साथ साथ जब वो across the border आप गई हैं, तो the way that again at a time जब hostilities बड़ी strong थी, जब थोड़ा nationalistic sentiment बड़ा strong था, बट उसके बावजूद जो है वो एक basic human feeling of emotion of happiness and connection. वो I think that was a very very beautiful thing, and I'd love to read your book one day of all of the detailed emotions that went into that. But before we get into all of that, मुझे पहले ये बताएं कि how did you what's the journey जिस पे आप the person that you are today, किस तरह से हुई? Because I know that you're an army brat. You probably moved around a lot. But tell me a little bit about your life. So starting from the bottom, my father's from the army. He's a brigadier. He's serving. We're from Peshawar, so very conservative place. Most of my childhood was spent in Peshawar because my father used to get posted to hard areas जैसे Siachen and everything. तो of course वो family friendly नहीं होते थे. We couldn't go. तो हम लोग अपनी नानी के तरफ रहते थे. तो of course फिर उसके बाद जब इधर उधर posting होती थी, we would travel with our father and everything. Currently we're posted in Rawalpindi. Right. So my schooling has been all over the place. Peshawar, Bahawalpur, Bahawalnagar, Karachi, Islamabad. Right. So I've been traveling since as long as I can remember. And of course abroad as well, deputations pe. So the journey started from a very, very young age actually. अगर मैं बहुत deep जाके सोचूं इस बारे में, तो I remember my khalas, my aunties, my mom herself. They've been an inspiration for me since as long as I can remember. उनका the way they carry themselves, उनके बात करने का तरीका, उनका इख्लाक, उनका fashion sense, उनकी cooking skills, literally everything, just them as people, right? वो आपके लिए तो वो influences होते हैं ना उस ज़माने में. Exactly. You learn a lot from them. Because we didn't have influencers back then, तो बचपन से ही they were my influencers. My grandmother, how they used to carry themselves. तो growing up, looking at them, I was like, wow, like I gotta do something like that, right? Yeah. So I
developed a sense of fashion from them. I learned from them. I was inspired. They taught me, of course, alongside इखलाक से लेकर, कुकिंग से लेकर, घर गृहस्थी से लेकर, अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना, own yourself, talk about what you want to talk about, that strong-headedness. Right. So I took all of that from them. I think social media, especially Instagram, was an outlet for me. Right. For all of those thoughts combined, from what I learned from them, सारा flow करना था, I found Instagram. Right. And then YouTube. So I started off, it was a private page. I used to put my pictures and Sorry, everything. मैं pause करूँगा आप क्योंकि Instagram पे तो आप आई, but before that as well. I mean, I know that you're a singer as well. Yeah. I think you paint as well. I was looking Yeah. at your story, I think, from yesterday, and there were a bunch of Yeah. paints here and there. Yeah. So जो art वाला element है, वो भी family से आया है? Is that something Everything. that you've explored? I got my voice from my grandmother, my mother, my khalas. They have beautiful voices, all of Right. them. My mamus as well. And paint. My amma paints. She is a pro painter. She's amazing at it. तो मेरे घर में different जगहों पे कहीं मेरी paintings हैं, कहीं अम्मा की paintings हैं, कहीं खाला की paintings लगी हुई हैं. तो this entire creativity, all of it, I take no credit for it. Like I Right. inherited it from my parents. And my father is crazy creative. Really? He is such an amazing painter. अभी भी घर पे एक painting लगी हुई है एक कश्मीरी लड़की की, which he made with a ball point. अच्छा. He made a sketch with a ball point, which is one of the hardest things to do because ball point को you can't erase. एक Yeah, stroke लग गया yeah. तो लग गया. So I have a lot Yeah, of, it's from both sides, Yeah, yeah. so both of them gave I think I have to credit both of them for everything that I have right now. मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है. तो ये सारा कुछ, all of this that I have taken from them, the genes that I got, I just explored it. Explored it, polished it, acknowledged it कि हाँ ये है, I like doing this, I think this is nice, and then I worked on it. So coming back to what we were talking about, so Instagram was an outlet for me, right? Right. Since from high school days से लेके वहाँ पे farewells होते थे, and all of that, friends में होता था, we dress up and everything, talk about things. तो वहाँ पे I had a private account. वही आई थिंक काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स की एक बहुत बेसिक सी स्टोरी है कि प्राइवेट अकाउंट था जिसको हमने पब्लिक कर लिया एंड देन वी वेंट फ्रॉम देयर. तो मेरी भी उसी तरह की स्टोरी है. आई हैड अ प्राइवेट अकाउंट और फिर मैंने उसको पब्लिक किया एंड देन दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. आई स्टार्टेड पोस्टिंग कंटेंट. आई वाज कंसिस्टेंट विद माय कंटेंट. आई स्टार्टेड पोस्टिंग देयर. और फिर When did you so officially made it public? दिस वाज 2 years ago. Acha, 2019. 2019. Yeah, Right. It was 2019. I officially made it public and I established my social presence. I was like, I'm here, hi. And I started posting content. उस वक्त तो initially तो मुझे कोई idea नहीं था कि क्या करना है. I was just going with the flow. जो मुझे ठीक लग रहा था. I started posting that, my outfits, my daily life, my routine. I started vlogging as well. And then, of course, फिर जाते जाते I started looking at you guys. I started following different content creators, the OG content creators, and then I started looking up to you guys, looking at your content, and then taking inspiration and then building my content, my thought process, inculcating all of that, Right. and then moving forward with all of that. And then one fine day, I uploaded a video, a video that I had never imagined in a million years would blow up the Right. way it did. And that was then, and this is now. Yeah. Yeah. Pretty amazing. मुझे थोड़ा सा ये पता चलें. So the early life went past very quickly, but थोड़ा सा I really want to ask a few questions here. Are you studying right now? I just got done with my A-levels and I'm going to start my university in September. So what's the plan for that? कहीं apply किया है? क्या है? कुछ? So I'm going to do the IR and politics wala, the degree, the external degree, the one Very that you get from LSE, but I'm going to do it from TMUC. So it's either going to be here, Lahore or Karachi. So I'm still juggling between deciding Yeah. where to do it from. I think I have a very strong feeling it's going to be Karachi. I do as well, but there's a lot of convincing that's going to go into making that I mean, it's a decision. difficult city to live in, especially if you're from up north. Peshawar, Yeah. Islamabad, दोनों बड़ी laid back cities हैं. Yeah. But then obviously जाहिर है कि आपका एक जो pathway है उसके अंदर it would be nice कि आप यूनिवर्सिटी के साथ साथ उसको भी pursue करें. And it's Exactly. gonna be a total pain in the ass कि अगर आपको TMUC करना पड़ रहा है फिर आपको fly करना पड़ रहा है. It's just Exactly. सही है. So IR and politics, that's a very curious choice. Considering the fact कि you're in this particular line. Why that? So before all of this, I had always wanted to do CSS. I think I've mentioned this in every other interview that I've done so far.
and that is something that hasn't changed. I think we're going to get to the point where we discuss how my life has changed and everything. Right. But just to bring it here, this is one thing that has remained constant and that hasn't changed for me particularly. I still wanted to pursue CSS. So I had 3 options. It was law, IR and politics, and media and film studies, right? Right. So because law would have been too taxing considering my workflow, and I have to take all of this alongside. I have to study, I have to work at the same time. So law would have been too taxing. So I went ahead with IR and politics because that is something that I think would help me prepare for CSS beforehand. Makes sense. That is something that would contribute to that. So Makes sense, hence makes why I sense. chose that. चलें, सो मुझे अब ये बताएं कि जी 1:20 पे थी आप, मुझे जितना याद पड़ता है, जब आपका वीडियो एक्सप्लोड की, और उसके बाद फिर आप गई 1 मिलियन पे, मिलियन प्लस 1.4. ज़ाहिर है आपने कहा कि इट वाज जस्ट, अगर आप प्रॉब्ली इफ़ यू लुक बैक, इट्स लाइक आपने यू जस्ट ब्लिंक ऑफ एन आई के ऊपर एवरीथिंग हैपेंड, क्योंकि वही वाली बात है कि उस वक्त जब हो रहा होता है ना तो बंदा एक ऐसे रश में होता है कि जब आप when you're looking back a lot of times you don't even remember a lot of things that happened. I genuinely do not. It feels like there's a huge memory gap. Yeah. Because everything इतना जल्दी सब कुछ हुआ, it blew up. Yeah. And it blew up like I've never witnessed before. Yeah. तो इतना the pace was so fast, it was hard to keep up with everything that has been happening. तो एक flow के साथ जो चलता जा रहा था, और अभी तो आधी चीज़ें याद भी नहीं है कि शुरू initial days में क्या हुआ था, क्या किया था, क्या नहीं किया था. It's a blur. So what's कोई याद है कि किस टाइम, दिन के किस टाइम डाली थी वो वीडियो? रात को डाली थी, आई थिंक शाम को डाली थी. हाँ, शाम के राउंड, वही जो हमारा टाइम मुझे होता याद पड़ रहा है कि आपने जब डाला, अब एवरेज आउट जब उस टाइम पे डालती थी ना वीडियोस, तो आपकी बड़ी अच्छी जा रही थी, आपकी इवन ट्रांजेक्शन वगैरह भी 150 170 तक जाती थी आराम से, यू नो, बियॉन्ड योर फॉलोइंग. सो 170 150 170 आपने डाली शाम को 6 से 9 वाले साइकिल में. ठीक है, और आपने उसको एक्टिवली देखा भी होगा. अच्छा, वो उसी वक्त से फटना शुरू हो गया था? सो द थिंग इज, वो शुरू हुआ था फेसबुक से. तो somebody screen recorded the video and they put it on a meme page on Facebook. ठीक है, मुझे अभी वहाँ आपकी से, सॉरी, मुझे वहाँ से नोटिफिकेशंस आना शुरू हो गई कि दिस पर्सन हैज शेयर्ड योर वीडियो, इसको जाके कहें कि आपको क्रेडिट्स दें एंड एवरीथिंग, बिकॉज इनिशियली सारे अपलोड करे थे. तो इनिशियली स्टार्ट हुआ था फेसबुक के पेजेस से. आई रिमेंबर मीम पेजेस पे. आई स्टिल हैव दोज मैसेजेस, आई स्टिल हैव दोज स्क्रीनशॉट्स. एंड मैंने एक स्टोरी अपलोड की थी द डे आई वोक अप, द नेक्स्ट डे आई वोक अप इन द मॉर्निंग. तो इट हैड ब्लोन अप क्वाइट अ लॉट उस लिहाज से. तो आई वाज लाइक, ओह, वी हैव टर्न्ड इनटू अ मीम ओवरनाइट. उस वक्त कोई आई थिंक 10-15 पेजेस ने लगाया हुआ था. And I took screenshots of it and I uploaded on my stories and I was like, wow, ये तो, you know, it's blown up. So yeah. So primarily Instagram पे अभी इतना ज़्यादा वो मतलब जनरल ट्रैक्शन मिल रही थी. It's the Facebook effect that sort of changed everything. You could say in a sense, because initially Instagram पे उस तरह का attraction नहीं था जिस तरह Facebook पे था. Right. ठीक है, तो ये ऐसे हुआ कि पहले Facebook ने पकड़ा, फिर उसके बाद वो ट्रैक्शन उसी तरह ही मिक्स होकर इंस्टाग्राम पे भी आ गया. जाहिर है कि इट एड्स ऑन टू योर ओरिजिनल वो, एंड देन आई थिंक लोगों के लिए वो हो गया ना, बिकॉज आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम दैट दिस हैपेंड, इट वाज लाइक ओके, शी इज बिकम अ मीम, एंड मीम का एक साइकिल होता है. सो यू न्यू कि अच्छा ये मीम है और मीम किस पॉइंट तक जाएगी. फिर वो मीम के बाद, एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई टेल पीपल अ लॉट. आई थिंक एट सम पॉइंट अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग, यू नो, गिव सेंडिंग यू स्क्रीनशॉट्स कि आप क्रेडिट्स लें, ये करें, वो करें. थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताया, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर एक पॉइंट आया था जब किसी ने कोई पहली वीडियो बनाई होगी जिसमें उसने रिक्रिएट किया आपका और उसने उसको ट्वीक किया. व्हाट वाज दैट, डू यू रिमेंबर? जो शुरू में आना शुरू हुई थी ना, वो नॉर्मल फॉलोअर्स ऑफ माइन. ठीक है, आई रिमेंबर बैठे हुए हैं, ये मैं हूँ, ये मेरा लैपटॉप है और ये हमारी स्टडिंग हो रही है, इस तरह की वीडियोज़. आई रिमेंबर एक बच्ची थी, उसने बनाई थी, 2 लड़के थे. आई रिमेंबर फेंटली. मेरा हाईलाइट है, आई हैव अ हाईलाइट ऑन माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल. उसमें जो फर्स्ट फ्यू थे ना, वो मैंने सारे उसमें ऐड किए हुए हैं. अच्छा. तो द फर्स्ट फ्यू पीपल दैट मेड द वीडियो, वो उनकी सारी स्टोरीज में अभी तक लगी हुई है. एंड व्हेन यू रीशेयर्ड देम, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दैट? The thought behind it was just to appreciate them. Okay, thank you. It was a sort of a thank you. Yeah. It was a gesture to, you know, appreciate that they've recreated something that I did. They've hopped on it. They, you know, they added their own twist and creativity to it, and just to acknowledge their effort. Yeah, because I think that, अगर मैं purely objectively देखूँ, that was the genius in this entire, मैं इसको campaign कहूँगा. Yeah. The genius was what
you'd call UGC, right? Like मीम का एक लाइफ साइकिल होता है. वो ये होता है कि आप एक वीडियो देखते हैं, आपको बहुत पसंद आती है या आपको बहुत बुरी लगती है, could go either ways. आप उस वीडियो को कंज्यूम करते हैं और आप उसको स्प्रेड करते हैं, फॉर गुड और फॉर बैड आप उसको स्प्रेड करते हैं. लेकिन एक दिन, 1.5 दिन, दूसरे दिन के बाद ना आप उसके बारे में आप you don't want to see it again, you don't want to hear it again. You're done with it. You're done with it. And a lot of times, even if you've heard of it, by the next 24 hours, you don't even want to, somebody tells you, listen, वो वीडियो देखो, यार 10 बंदे ने इसकी बात कर ली है, माफ कर दो. बस हाँ. The genius was where you created unknowingly an entire marketplace. So now what was the marketplace? The marketplace was when you reshared those first few stories or recreations. Suddenly, all the followers were looking at this economy of how we can be part of this pop culture, something that's blowing up, right? It turned into a movement. It turned into a movement. So now everybody is trying to create their own version of party ho rahi hai, where they're like, okay, I'll do this and I'll do that and I'll do that. And now you don't, अब पहले 24 घंटे में आपने आपकी वीडियो तो देख ली, बट अब आपने अगली वीडियो भी देखनी है और आपने अगली वीडियो भी देखनी है. Now everybody wants to be a part of that movement. And I think for me, अगर मैं उस पूरे की पूरी चीज़ से कुछ स्टडी करके निकालूँ ना बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो मैं यही निकालूंगा कि it was so organically done. I think organically भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रांड्स वगैरह जब आते हैं तो वो फिर बड़ा इनऑर्गेनिक करने की कोशिश करते हैं. Organically and natively, the way that you were able to convert that into a movement. And just to reiterate, there was no such intention behind it when I was uploading these videos. Yeah. When I was resharing all of this, I never thought कि हाँ ये मैं करूँगी तो इसकी वजह से ये traction आएगी, ये करूँगी ये. I'm quite certain आपको समझ भी नहीं आ रही होगी कि ये reaction है. I was just going with the flow. Notification, yeah. Exactly. So just to reiterate, there was no such intention of me doing it in a sense कि हाँ इस वजह से ये होगा. अच्छा, by the way, मैं इसमें ये भी बोलना चाहूँगा कि मुझे पता है इन्होंने नहीं किया. वजह ये थी कि बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम ना, तो किसी के दिमाग में ये आती नहीं है. ये मेरे दिमाग में इस वजह से आई कि मैंने 10 साल लगाया है, मुझे पता है कि क्या क्यों किस तरह फ्लोज गुजर रहे होते हैं, तो मैं उसको उस तरह से ले रहा था. आई एम अ लिटिल नटी लाइक दैट. बट अगर इन्होंने किया भी होता, हमारे मुल्क में भी बड़ा एक अजीब सा प्रॉब्लम है कि एवरीबडी वांट्स अटेंशन बट दे डोंट वांट द अदर पर्सन who's capitalizing on that. Everybody wants to be rich, they don't want the other person to be rich. It's really weird. So to be very honest, अगर आपने किया होता या आगे जाकर आप कुछ भी ऐसा करेंगे. Of course, even if I had an intention, if I had thought of it pragmatically, that would have been fine as well. That would have been perfectly fine. Because this is your business. आप एक business कर रही हैं भाई, आप एक इंडस्ट्री में. अल्लाह ने एक आपको मौका दिया ना, एक आपको there's a chance, you've been given this opportunity that nobody has ever gotten. Why not make the best possible use out of it? Absolutely. Like why? मुझे ये समझ, एक तो ये कि definitely you should make the best possible out of it. And what is the reason why someone wouldn't? Yeah. What is the reason? Why wouldn't you? Why wouldn't you capitalize on something that is literally given to you in आपकी गोद में आके एक चीज़ आई है. Exactly. Why wouldn't you make the best possible use of it? 100%. Considering the fact that you've been doing this for 2 years, you've been very actively involved in the entire process. उसके अंदर जाहिर है कि एक इंडस्ट्री है, उसमें एक प्रोफेशन का एलिमेंट है, उसमें वो सारा का सारा है. खैर एनीवे, सो वो यूजीसी का एलिमेंट बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग था. आई लव दैट. आई लव द फैक्ट दैट you just didn't make it about yourself, but you said, listen, everybody can participate and everybody can join the fun. And it was because of everybody that this took such a huge turn. अगर ये सिर्फ मेरे बारे में होता तो 1-2 दिन बाद चीज़ ख़त्म हो जाती. बट बिकॉज एवरीबडी वाज इन्वॉल्व्ड इन इट, बिकॉज एवरीबडी वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. सब ने इतना प्यार दिया, एवरीबडी वांटेड टू बी इन्वॉल्व्ड. दैट इज़ व्हाई इट वेंट टू द हाइट्स दैट इट डिड. अगर ये छोटी सी चीज़ होती जो मेरे अराउंड होती, इट वुड हैव फिनिश्ड इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू डेज. एब्सोल्युटली. एंड देन सो इट वाज समथिंग जो कि इसका ग्राफ जो आपका है ना, वो थोड़ा सा यूं करके आया ना, राइट. सो होता था कुछ एक मेजर चीज़ होती थी, एंड देन यूड बी लाइक, अच्छा माय गॉड, लाइफ इज सो अमेजिंग एंड नाउ आई एम गोना ब्रीथ एंड ट्राई टू सी के पिछले क्या पीछे क्या हुआ, एंड देन सडनली समथिंग न्यू हैपेंड. रन मी थ्रू दैट, बिकॉज द स्टार्ट कपल ऑफ डेज, ठीक है, you went viral. Now people are recreating that content. You share a bunch of that on your Instagram feed. There's a bunch of new followers coming on Instagram. You're figuring out, and this is also very interesting, कि जब आपका वो 1-20 से मैं कहता हूँ 2 लाख पे आप पहुँची, तो एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा टाइम है. 80,000 नया बंदा है, उसको कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, और वो आ रहा है और आके वो कर रहा है. मैं आई कांट इवन इमेजिन द DM. इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई रिमेंबर मैंने एक दफ़ा अपना DM खोल के देखा था थ्रू आउट ऑल ऑफ दिस. एक दफ़ा आई ओपन माई DM रिक्वेस्ट, एंड वो पहला मैसेज मैंने देखा और आई ब्लिंक्ड
एंड वो पता नहीं कहाँ चला गया नीचे. तो इट वॉज मिली सेकेंड्स में मैसेजेस चेंज हो रहे थे, मिली सेकेंड्स, नॉट इवन सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स में न्यू. तो आई थिंक वो एक चीज़ इतनी ओवरवेलमिंग थी कि आई थॉट कि इससे थोड़ा सा अभी दूर आ जाए. जब और उसमें भी कितनी सारे लोगों ने रीच आउट किया होगा फॉर वर्क एंड फॉर व्हाट नॉट, राइट. डीएम्स आपको गेट मैसेजेस, राइट. बट आई जस्ट कुड नॉट गो देयर बिकॉज इट वाज सो ओवरवेलमिंग, इतना ज़्यादा, एंड एवरीबody had something to say. So I just stayed away from that. I stayed clear from that. Yeah, and because when you're a content creator ना, तो आपका बड़ा वो होता है, एक sort of OCD सा होता है कि you want to make sure कि जो भी लोग आपसे interact कर रहे हैं, जो भी कर रही हैं, वो you wanna read all of that. Normal days में आपके off days में आप जाते हो, आप DM देखते हो, आप you just go through them, all of them. और जब ये होता है ना, एंग्जाइटी सी हो रही होती है कि यार ये इतने सारे आ रहे हैं, आई एम नॉट गोना बी एबल टू नो व्हाट ऑल ऑफ दीस पीपल सेड टू मी. People have to say. Yeah, and you have to very consciously sort of disconnect yourself from that thought process. That is what I did for a little while. Chale, I think it was very it was time, need of the time. Yeah. I had to. Right. एक चीज़ और so anyway, so again हम बहुत सारी थॉट्स हैं तो उसमें आ रहे हैं. फिर एक टाइम आया, आई थिंक जो नेक्स्ट बूम था वो फिर क्रॉस बॉर्डर था, राइट. पाकिस्तान में आई थिंक ये हो गया क्योंकि नेक्स्ट एक क्रॉस बॉर्डर वाला बूम आया था, और फिर उसके बाद क्रॉस बॉर्डर के 2-1 दिन बाद मैंने देखा कि पाकिस्तान में फिर वो इस पॉइंट पे आ गया कि असद उमर इज टॉकिंग अबाउट इट, एंड द पार्लियामेंट में के अंदर जो है ना वो चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर वीडियो के साथ वो चल रहा है. बट जो ये वाला था इंडिया वाला, व्हाट वाज दैट? रन मी थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ दैट. इंडिया वाला जो था वो आई थिंक द पिनिकल ऑफ द बूम was when Yash Raj made the recreation of the video. Right. But I think that was in शुरू के कुछ दिनों में उसने बना ली थी. And I think that is why it went crazy in India, because everybody वो रसोड़े में क्या था वो तो हमने भी पूरे पाकिस्तान ने किया था, बिल्कुल पूरे पाकिस्तान ने किया था. And then वो तोड़ा कुत्ता टॉमी वाले जो वीडियो थी, we still do that. तो because of the place he's developed in India, the audience, तो he made that video, he recreated the video, he added a song to it. तो he उसने twist कर दिया, इस पूरी डायनामिक को उसने चेंज कर दिया. उसने इसको एक सॉन्ग बना दिया. नाउ पीपल कुड वाइब टू द सॉन्ग, राइट. पहले तो लोग पीपल वर जस्ट रिक्रिएटिंग इट, दे वर जस्ट सेइंग कि ये दे वर दे वर मेकिंग इट रेलेवेंट टू देयर सिचुएशंस, रेलेवेंट टू देयर इंडिविजुअलिटी. अब इट इज़ अ सॉन्ग, right? So everybody is jamming to it, everybody is vibing to it, everybody is playing it in their cars, in their homes, at their weddings. Right. So अब it has taken a different turn. Yeah. जब यश राज ने वीडियो बनाई उसके बाद फिर इट बिकेम अ ट्रेंड इन इंडिया. तो एक बूम पाकिस्तान से, एंड देन नाउ इट्स a bigger boom. Yeah, it's another. And then that has a trickle in Pakistan as well, right? Because of course that's a much bigger industry. So when that industry does it, when Shahid Kapoor does it, suddenly when Deepika Padukone, Virat Kohli, Shahid Kapoor, Salman Khan, all of these people, Ranbir Kapoor, like who doesn't know them, right? Who does not know these people? So when that happened, यहाँ पे एक और बूम आया, बिकॉज पीपल आर लाइक ओ वाओ ये तो उस लेवल पे हाँ उस लेवल पे हो रहा है वहाँ पे. तो यहाँ पे इट टुक अनदर टर्न यहाँ पे. एंड देन जब बोथ कंट्रीज में पीक पे था, ऑफ कोर्स बिकॉज द ऑडियंस दैट बॉलीवुड हैज़ इज़ इंटरनेशनल. जो स्टार्स थे जिन्होंने किया, दे हैव एन इंटरनेशनल फॉलोइंग, और यहाँ पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल फॉलोइंग है. तो इट वेंट बियॉन्ड द टू बॉर्डर्स, लाइक इट वेंट viral internationally. Right. So I was getting videos from the UK, the US, I was getting videos from Australia, Dubai, Turkey, Russia, Africa, right? I was getting videos. उसके बाद people started tagging me, मैं अपने tag post देखती थी, and it had gone crazy. मुझे calls आती थी relatives की कि यहाँ पे तो मैं लंदन में बैठा हूँ पिकाडेली में, and I मेरे सामने 2-3 groups हैं teenagers के, and they're all going party and I'm like wow, okay, this is crazy. And that's powerful. That's very powerful to have that impact. It's obviously internet and digital age कि हम बहुत बात करते हैं, but the idea that you could do, I mean, you're on a trip to Murray, right? Aptabad. You're on the road. वो क्या गाड़ी कौन सी थी यार? Was that a Suzuki डब्बा? It was a डब्बा. It was a Suzuki डब्बा. The beauty of Suzuki Bolan, which in itself is so powerful, subcontinent के अंदर. Such a statement. Yeah. That going global, इसको लोग again हमारे पाकिस्तान में ना, one of the things that we miss is कि we don't really sort of understand कल्चर डेवलप किस तरह होता है. कल्चर होता क्या है? कल्चर के डिस्कशन के ऊपर हम बड़ी दफ़ा कहते हैं ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर है. क्या है कल्चर? आपका इस तरीके से डेवलप होता है. इट्स व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल
suddenly start doing, start using, start hearing. And again, pop culture, popular culture ke andar, this was a very monumental moment. Yeah. Because for a lot of people, this was the first time that a meme had gone truly commercial. इससे पहले हमारे पास 1 pound fish भी था, हमारे पास बहुत सारे और भी थे, but a lot of times what that did was कि they created these one hit wonders जो कि who had no idea, जिनको मीडिया का जनरली आइडिया ही नहीं था, but this time you were smart enough to understand I came from a background that I had an idea of how to handle it or how to, take it forward, and I had a know-how of this industry. Absolutely. I was a part of it. Absolutely. And I think that's the most important aspect to all of Definitely. I think the direction that this took was solely because of my knowledge of this industry, because of being a part of it already, and because I had been working as a content creator for the past 1.5 years. So I had a know-how, I knew how to handle it. And of course, क्या मैं ऐसे एक्ट करी जैसे मुझे सब कुछ पता था. आई वॉज अ वेरी क्लूलेस किड व्हेन ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग. आई वाज लिटरली, मैं अपनी अम्मा की गोद में जाके एट टाइम्स आई वुड जस्ट क्राई, लाइक अम्मा मैं बहुत ओवरवेल्म हो रही हूँ, ये क्या हो रहा है. एंड आई वुड जस्ट क्राई एंड आई वाज गेट अप एंड आई वाज लाइक ओके टाइम टू गेट बैक. सो इट वाज जस्ट दैट. तो एक तो थोड़ा सा नॉलेज नो हाउ था, लेकिन फिर आई थिंक इसमें थोड़ा सा मैं ये एलिमेंट ऐड करूँगी कि अल्लाह जब आपके नसीब में कुछ लिखता है ना, तो कोई छोटी सी चीज़ उसका वसीला बन जाती है. ये जितना भी मुझे जो अचीव किया है थ्रू आउट दीज पास्ट फ्यू मंथ्स, ये मेरे नसीब में था. तो वो जो वीडियो है ना, वो एक वसीला बन गई इस सब का. और फिर उसके बाद अल्लाह ने, ही जस्ट गेव मी द पावर टू हैंडल ऑल ऑफ इट, राइट. बिकॉज अभी मैं अगर सोचूं ना, और मैं ये सोचूं कि जो सब कुछ हुआ, would I have been able to handle it? तो मैं no, I would not have been. लेकिन because of everything that had been happening, and then of course you get the courage, you get the strength. Allah gives you that strength to handle everything. तो I think वो flow जो था, it was all because of him, and all of it flowed so smoothly. और अल्लाह ने इतना करम किया कि इतना प्यार, because मैं ये सोचती हूँ ना कि जो memes वायरल होती हैं, जो लोग वायरल होते हैं, जो ट्रेंड्स बनते हैं, उनको एक बहुत परसेंटेज, a huge percentage of people just hate it. They just do not like it, and it's काफ़ी चीज़ें famous हो जाती हैं, just like you said, just because of the way people don't like that, right? So in my case, it was quite different. Everybody was really enjoying it. People were happy. People were laughing. There was this huge wave of happiness and positivity that was flowing globally and between the two countries. So I think Allah का बहुत करम है. He's been extremely kind throughout. जो भी हुआ है, he's been very helpful, and I've like really powered through this. My family has been a huge support through it. So I think I wouldn't have been here if it wasn't for the support of my family. Yeah, that was going to be my next question. What was it like? I know your sister was very actively involved. What was it like for your... do you have any other siblings? I think you have a younger brother. I have a younger brother, yeah. Yeah, what was it like for him and for your parents? So for my parents are pretty chill. अच्छा. Right? तो उन्होंने ना खुद सर पे सवार होने दिया, और ना मुझे सर पे सवार करने दिया इस चीज़ को. जब भी मैं उनको कहती थी, मैं ये एक चीज़ काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी कह चुकी हूँ. मैं अम्मा के पास एक दफ़ा गई और मैंने कहा, अम्मा अब आप मेरे से ना इस तरह नहीं बात कर सकती, मैं अब सेलिब्रिटी बन गई हूँ. उन्होंने अपना जूता उतारा और मुझे कहा, बेटा कहाँ की सेलिब्रिटी, कौन सी सेलिब्रिटी. तो देव केप्ट मी ग्राउंडेड, देव केप्ट मी हम्बल. They've kept me connected to my roots. I think that's very, very important. Exactly. तो जितनी उड़ान आई है, my feet were always on the ground. My parents, they've always kept me grounded. जो भी होता था, I used to tell them कि ये हो रहा है, ठीक है बेटा, but this is your reality. This is your roots, and please do not forget. ठीक है, आप you're flying high right now. We do not want to cut your wings. We do not want to say कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना. Do what you feel like doing. हमने आपके लिए आपकी हुदूद बना दी हैं. This is your circle. Just be responsible with what you're doing. Be responsible. We've trusted you. Be responsible with what you're doing, and that's what we did. I think that's excellent parenting as well, because वही वाली बात है कि a lot of times, a lot of parents, and I know someone who got that attention as well, and whose parents were very confused
एंड इवन दो वो ग्रजिंगली कोशिश करते हैं कि ठीक है एक्सेप्ट करें, लेकिन वो फिर समहाउ वो ग्रोथ जो है ना वो हैम्पर होती है, एंड इट इफेक्ट्स वेरी वेरी नेगेटिवली ऑन द चाइल्ड एज वेल. डेफिनेटली. कि इफ योर पेरेंट्स आर, भाई आपकी लाइफ में इतनी एक्साइटिंग चीज़ें हो रही हैं और आपके पेरेंट्स कह रहे हैं अच्छा बहुत अच्छी बात है, कोई इतनी बिग डील नहीं है, जाओ पढ़ाई करो. एग्जैक्टली. यार क्या सीन है. No, my parents, whereas on one side they kept me grounded, on the other hand, they were very happy for me. They uplifted me, they empowered me. They did not restrict my avenues. They let me travel to Karachi alone, me and my sister. We stayed there. I've been traveling back and forth more than I have traveled since the past 2 years. Right. And never once have they said कि नहीं आपने ये नहीं करना. मैं उनको बताती हूँ. I tell them. I think key is communication. Right. मैं उनको बताती हूँ अम्मा अब्बा this is what is happening, ये काम है, this is what I'm getting out of it, this is the it's a utility क्या है उसकी. Yeah, utility क्या है. We have a conversation. They express their concern. I express my concern. We have a conversation. And that is how it goes. So Right. I think I really have to all the parents who are also watching this, trust your kids. Yeah. Talk to them, have a conversation. उनसे बात उनको सुने तो सही कि वो क्या कह रहे हैं. Yeah, I mean, they're not a bunch of idiots, right? Like, they're human beings thinking something, तो try to decontextualize कि यार ये क्या बात हो रही है. और अब थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होके फ्रॉम द सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू कि लोग क्या कहेंगे वाली जो मेंटालिटी है, थोड़ा सा उससे डिस्कनेक्ट होके अपने बच्चे को सुने कि उसकी थॉट प्रोसेस क्या है. वो अगर कुछ कर रहा है तो उसके पीछे उसका क्या वो सोच रहा है कि मैं इस वजह से कर रहा हूँ. क्योंकि आप यू नेवर नो, किड्स आर क्रेजी दीज डेज. I've seen my brother, he's what, 14. Yeah, so what उसके लिए कैसा था? Because he must have gone to school or talked to his friends, and it must be like, yeah, what was he going through at that time? That's something I'm very interested in. So my brother was feeling left out. अच्छा. क्योंकि मैं और नफायल हम कराची में थे yeah. इनिशियली. जब हम निदा बाजी के शो के लिए गए थे, वी स्टेड देयर फॉर आई थिंक 12 days or something. तो द इंटायरिटी ऑफ द प्रोसेस, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल एंड एवरीथिंग, एंड वी यूज्ड टू कॉल हिम बैक होम. और हम बताते थे हम आज शाहिद अफरीदी से मिले, हम ये मिले, हम ये इस तरह, ये जल्मी की टीम, ही इज़ रियली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट. तो जब उसको बताते थे ही वाज हैप्पी, बट ऑफ कोर्स एज अ किड ही फेल्ट लेफ्ट आउट एंड एवरीथिंग. बट ही हिमसेल्फ वाज वेरी, माशाल्लाह, ही इज़ वेरी मैच्योर फॉर हिज एज. बहुत, ही इज़ माई फेवरेट. Right. मेरी जान है नोफल. आई लव हिम. ब्यूटिफुल ब्राइट किड. तो ही वॉज वेरी सपोर्टिव. आपा अच्छा ये भी करें, ये भी करें. ही गिव्स यू कॉन्टेंट आइडियाज. इमेजिन एट दिस एज. हाँ, ही वाज लाइक आपा ये भी कर सकती हैं, ये भी कर सकती हैं, ऐसे भी करें, ऐसे भी करें. तो ही डिड ऑफ कोर्स फेल्ट लेफ्ट आउट, feel left out, but I understand, of course. Yeah. But he was very, very I think good. that's where your role will be very, very important, even continuously. Yeah. Okay, how do you bring him on board? No, so every time I went to Karachi after that, I took him with me. Acha. Everywhere I go, I take him with me. If I'm going to meet my friends, I make sure that he's with me, ताकि, because मेरी life का graph ऐसे गया है. And the rest of my family, they're constant, right? Yeah. तो मेरे लिए individually, I wanna make sure that everybody is on the same page with me, ताकि मेरी जिंदगी बहुत fast paced, अजीब, मैं disconnect ना हो जाऊँ अपनी family से. I think because they need to understand exactly what's going on, instead of कि बस आपको एक side से एक picture नजर आ रही है. Exactly. And I think वही दोबारा I'll reiterate, communication. So I keep my family, my siblings, my parents on the same page. I talk to them about everything. I अभी भी अब्बा को बता के आई हूँ, अच्छा ये घर है, ये इस तरह, ये सीन है, YouTube दिखाया, अच्छा ये है. So that they feel connected, right? उनको ये ना लगे कि अच्छा ये हो गया है, now she's disconnected, और बच्चा हाथ से निकल गया वाला जो एक प्रोसेस आता है पेरेंट्स के जहन में. तो आई एम कॉन्स्टेंटली वेरी एक्टिवली वर्किंग ऑन दैट इज़ वेल, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि आई एम दे फील लेफ्ट आउट और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. माई पेरेंट्स, माई सिबलिंग्स एंड नफायल, oh God, I think we need to do another podcast on my sister herself. Yeah. Oh God, what an amazing human being. I think मैंने of course अल्लाह के फजल का भी जिक्र किया, फैमिली सपोर्ट का भी जिक्र किया throughout this. Nafail, if it weren't for her, I would have been an emotional wreck. Because throughout this time, उसने ना मुझे ऐसे पकड़ के रखा हुआ था. Because she's elder. Right. She's older. She's 11 months older than me. So, but she is, I think, 11 years mature than me. तो उसका जो एक बड़ी बहन का एलिमेंट था थ्रू आउट, उसने शी इज़ गाइडेड मी वेयर आई फेल्ट लाइक अ लॉस्ट लैम्ब. शी इज़ गिवन मी एडवाइस, शी इज़ टोल्ड मी अच्छा इससे मिलना है, इससे नहीं मिलना, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना, ये करना है, ये नहीं करना. शी इज़ बिन विद मी थ्रू आउट. सो एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताऊँगी. बिफोर द निदा बाजी का शो,
the night we were staying in Karachi, the night we landed. Right. So we brought some clothes with us and we had to get some clothes delivered because I was wearing a brand that was in Karachi. Right. तो वो कपड़े आए and I wore them and they were tight. They didn't fit. वो नीचे ही नहीं उतर रहे थे कपड़े. And I was like, oh God. The worst has happened. Worst has happened because shoot was, this was 2 in the morning, 2 a.m. And the show was 6, the call time was 6 a.m. So it was a morning show था. So I had to be there before hair and makeup के लिए. I was like, क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता. I'm done. I'm not going to the show. ख़त्म, मेरी ज़िंदगी ख़त्म होगी, right? तो she calmed me down. She put the clothes aside. उसने मेरे लिए एक backup option रखा हुआ था. She took that out of my luggage. She got it ironed. उसने जूते, jewelry, हेयर एसेसरीज, मेकअप, कपड़े, सारा कुछ सेट करके एक साइड पे रखा. शी इज़ लाइक, जीना आपने टेंशन नहीं लेनी, यू आर सॉर्टेड, यू आर डन, यू हैव योर क्लोथ्स, दीज फिट यू रियली नाइस, आई हैव सीन यू वेयर दीज क्लोथ्स, कल इंशाल्लाह एवरीथिंग विल गो परफेक्ट. तो मैं यही सोच रही, इफ आई वाज अलोन इन दैट रूम आई वुड हैव कोलैप्स्ड. I would have had a mental breakdown. I would not have known what to do. And this is just one example out of 1,000 examples of what she's done to be there for me, to be a rock. Yeah, and I think that's very, very important as well. ये बड़ी आपने interesting बात बोली कि when something like this happens, you feel inherently very, very lonely, right? And to have that a person who is constantly with you, B, constantly telling you, listen, everything's gonna be fine. क्योंकि वो आपको ये लगता है कि यार अच्छा मुझे अब कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं रहा suddenly, right? Like तो होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, आपके घर वाले हैं, सारा कुछ है, but they will never really truly understand अगर वो साइड से देख रहे हैं. With your sister, what she did was because she was not only very actively involved, she was like, I'll be the receiving end of all the noise and you focus on you. Definitely. That's exactly what happened. Right? And that's why you were able to maneuver through it. देखिए मेरे लिए सबसे important चीज़ when I was looking at your evolution was all the steps that you're going to take one by one, because it is very, very difficult. ये लोगों को लगता है बहुत आसान है. हमारे ना बड़ी ये बातें होती हैं जी, शोहरत के लिए या टेंशन के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए. ये कोई आसान काम नहीं होता. Probably one of the hardest things in the world. No doubt. No doubt. When this is happening, to be able to maneuver through it with class, ये एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत कम लोगों को इस चीज़ की समझ आती है. जब आपके पास ऐसा एक डिसीजन ट्री होता है जिसमें आपको 100 ऑफर्स आ रही होती हैं, 100 लोगों से बात करनी होती है, हर बंदा, एंड एवरीबॉडी इज पुशिंग, एवरीबॉडी इज लाइक ये और ये है, ये नहीं है तो तुम दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज कर जाओगे. एग्जैक्टली. एंड नाउ यू हैव टू मेक वेरी, वेरी रैशनल डिसीजंस. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जिस बंदे से बात करेंगे ना, वो आपको अपनी कोई एक्सपर्ट ओपिनियन देगा, हालांकि उसके 2 रुपए का कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ, नहीं होगी, बट दे आर गोइंग टू फील लाइक दे नो एवरीथिंग. कि ये इसने ऐसे क्यों कर लिया, ऐसे कर लेती, इस तरह क्यों कर लिया, ये वाली अपॉर्चुनिटी क्यों लूज की. ये दिस हैज ट्रिगर्ड अनदर वो मेमोरी इन माय ब्रेन. सो मेनी पीपल, बिकॉज ऑफ कोर्स इतनी सारी कैंपेन्स, इतनी सारी ऑफर्स, सो मेनी प्रोजेक्ट्स, बट आई हैड टू बी ऑफ कोर्स वेरी केयरफुल बिकॉज कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड दैट आई हैव, आर्मी का भी एक वो था, थोड़ा सा वहाँ से रिस्ट्रिक्शन है, दूसरा मेरी फैमिली भी थोड़ी सी कंजर्वेटिव है, तो आई हैव टू make sure that everything is aligned with whatever is happening. I mean, that's your brand, right? Like you will define what your brand looks like. Exactly. तो कुछ projects, huge projects that I didn't do because I didn't resonate with them. बहुत बड़े offers मैंने refuse कर दिए because it was good money, but I couldn't connect to that project. It wasn't me. वो मेरे ब्रांड के साथ अलाइन नहीं हो रहा था. काफ़ी सारे लोग came to me and they were like, ये तुमने तो बहुत लॉस कर दिया, फ्यूचर तबाह कर, अब तुम्हारा ना डिक्लाइन आएगा, इसके बाद तुम देखना तुम्हारा जो था ना, तुम्हारा वो वायरल ट्रेंड का अब नीचे जाएगा सारा कुछ. I was like, ये इंसान के हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले ने दिया है और वो ही ले सकता है. Exactly. ना मैंने कभी प्लान करके लिया था, ना मैंने सोचा था कि मुझे ये मिलेगा, ना मैंने ये सोच के कहा कि हाँ मैं ये लूंगी, और ना मैंने अभी ये सोचा है कि हाँ अब मैं प्रोटेक्ट करूंगी पूरी जिंदगी, इस चीज को वो करूंगी. You are gonna do you and I myself throughout all of this has happened, I haven't changed at all. जो मैं पहले थी 3 महीने पहले, अभी भी मैं एग्जैक्टली वही इंसान हूँ. बहुत चीज़ें ऐड हुई हैं, लेकिन आई हैवंट, जो मेरा एक एसेंस है, कोर है, इट हैजंट चेंज्ड. आई एम स्टिल जीना, आई एम स्टिल दैट पर्सन, वाइजर, आई वुड लाइक टू अस्यूम. लेकिन कुछ ऐसा नहीं चेंज हुआ मेरी ज़िंदगी में जो मैं कहूँ कि यार बस माई डायरेक्शन इन लाइफ हैज़ चेंज्ड. तो वो देता है और उसके हाथ में है लेना. तो कोई
टॉम डिक हैरी आके ये नहीं कह सकता कि तुमने ये नहीं किया तो अब गया सब कुछ। ना मैंने किया था इस नीयत से, ना आगे कुछ मैं इस नीयत से कर रही हूँ, जो हूँ उसी तरह ही चल रहा है, अल्लाह बेहतर करे जो भी आगे जाता है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज it's not easy to come to this conclusion, right? Like आपको मुझे I know for a fact, देखिए किसी भी वायरल ट्रेंड में ना इसमें मोहब्बत आएगी और मोहब्बत बहुत अच्छी है और प्यार आया सारा का सारा, बट उसमें एक एलिमेंट ऑफ जेलसी भी आएगी, डेफिनेटली उसमें एक एलिमेंट ऑफ अनोयंस भी आएगी। वन ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंड विद यू वाज कि नॉर्मली व्हेन वी ग्रो एज कंटेंट क्रिएटर्स, एज इन्फ्लुएंसर्स, एज डिजिटल पर्सनालिटीज़, हम हमेशा अपने साइलो और फिल्टर बबल से आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे होते हैं। सो हम पहले 10-15 हज़ार 20 हज़ार फॉलोअर्स जो होते हैं वो हमेशा हम जैसे हमारे दोस्त यार, फिर उनके दोस्त यार, और फिर उस कम्युनिटी के लोग होते हैं। सो इट बिकम्स इंक्रीजिंगली ईजी फॉर अस टू जस्ट बी आवरसेल्व्स द वे दैट वी ट्रूली 100% आर। फिर जब हम 100 के क्रॉस करते हैं तो काफ़ी हद तक हमारे पास मुख्तलिफ देहात से लोग भी आ चुके होते हैं, मुख्तलिफ शहरों से भी लोग आ चुके होते हैं, कल्चर्स बहुत फ़र्क हो जाते हैं, डाइवर्सिटी बहुत डाइवर्स हो जाती है ऑडियंस। आप मिलियन हिट करते हो और मिलियन क्रॉस करते हो तो आप इफेक्टिवली पूरे स्पेक्ट्रम को डील कर रहे हो। और वो जो स्पेक्ट्रम है, मुझे याद है, आई रिमेंबर, एंड आई एम सॉरी आई एम ब्रिंगिंग दिस अप, बट आई फील लाइक यू आर एट दैट मैच्योरिटी लेवल वेयर वी कैन हैव दैट ऑब्जेक्टिव कन्वर्सेशन। जो आपके अर्लियर इंटरव्यूज थे ना, इंडिपेंडेंट उर्दू का था आई थिंक, या BBC उर्दू का था, वन ऑफ दोज, ARY का था, इस तरह के 2-3 थे जो कि फेसबुक पे गए, दे ब्लू अप, बट द फेसबुक कमेंट्स वर abysmal. I think let's talk about Facebook audience first. Yeah. Extremely toxic. I think let's come to that conclusion first, right? Because I steer away from Facebook solely because of the fact कि वहाँ पे audience का एक sole motive है, which is to hate people with no purpose. Yeah. वो again वही वाली बात है ना कि वो देखिए उसमें nuance समझना बड़ा important है। वहाँ पर वो SEC टारगेट ऐसी हो रही है जिस SEC को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है ना, उसको तो it doesn't fit in their box. Exactly. So it was out of their box and they couldn't fit me in one of their boxes, so they had no other option than to hate or dislike it or say something negative about it. Absolutely. And I think what that would do to a lot of people, particularly for a young girl like yourself, वो ये है कि if they would go and they would read all of that, they would just completely break down. Shatter them. It would shatter them simply because of the fact कि यार देखें, कोई इंसान दुनिया में कोई इंसान नहीं है ऐसा, we are not evolved as human beings to read all of that stuff about ourselves. ठीक है, ये बातें हैं कि it's heartbreaking, it shatters you. आप थोड़े सोशियोपैथिक हो जाते हो उसके बाद. You have to cut off certain emotional elements away from your body to sustain all of that. Public figure accept करोगे तो फिर हम dehumanize कर लेंगे अपने आप को. Public figure है, public property नहीं है. There's a difference. So for you to be able to sit here as empowered as you are, mashallah, how did you manage to deconstruct these thoughts and say कि listen, Facebook is toxic. Instagram के ऊपर जो मुझे ट्रिकल आ रहा है वो तो मुझे साफ सुथरा आ रहा है. So I need to focus on the audience that understands what I'm doing. I need to ignore the audience that has no idea. To be very honest, they're all part-timers. They come in, they hate, they move on to the next one. 3 days later, they hate on something else. याद भी नहीं होगा कि मैंने उस वाले पे comment किया था. And the smarter and more mature thing to do would be, listen, let's just forget about that. Was that Nafail who sort of maneuvered you through that? Definitely. I think she was the one who spearheaded this entire thing. But also because I have been in this industry for a long time, so I know किस सोशल मीडिया ऐप की ऑडियंस किस तरह की है. तो ऑफ कोर्स ट्विटर की वी नो ट्विटर का क्या सीन है, फेसबुक का भी हमें पता है कि फेसबुक की आवाम का क्या सीन है, फिर हमें ये भी पता है कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम इज अ लॉट मोर मेलोअर देन दीस टू प्लेटफॉर्म्स. एंड द ऑडियंस दैट कम्स देयर अंडरस्टैंड्स व्हाट यू डू. They understand they're from this from this space, they understand like minded people हैं. फेसबुक का और ट्विटर का इनिशियली तो काफ़ी प्यार था, बट देन ऑफ कोर्स कुछ लोग ऐसे होते हैं ना which don't, they're just not happy कि यार ये चली क्यों जा रहा है. तो वो अंदर से सोच रहे होते हैं कि यार ना बस 2 दिन की 4 दिन की चांदनी अभी और खत्म हो जाएगी. कितने लोगों ने सोचा होगा कि यार चलो हाँ भाई जो अभी पिछले 2 दिन पहले एक वायरल ट्रेंड आया था ये वही है, 2 दिन बाद खत्म, 4 दिन की चांदनी है. बट देन पीपल आर लाइक ओह शिट ये तो रुक ही नहीं रहा, ये तो चली जा रहा है. एक बंदा करता है फिर दूसरा बंदा करता है, एंड एवरीबडी इज डूइंग इट एंड दे आर कंटिन्यूअसली डूइंग इट. तो पीपल सम पीपल आई थिंक इननेटली जस्ट कैन नॉट डाइजेस्ट द फैक्ट कि यू आर डूइंग सो गुड, you're doing so well, आपको इतना प्यार मिल रहा है, आपको इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है, एंड देन you're just going ऊपर एक कर्व है और वो
ऊपर की तरफ ही जा रहा है. Right. कुछ लोगों से एक तो वो नहीं अंडरस्टैंड होता, दूसरा वही जो आपने बात की, हम बॉक्स में नहीं फिट होते कुछ लोगों के, तो दे हैव नो अदर ऑप्शन देन टू से समथिंग नेगेटिव, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि ये हो क्या रहा है, क्यों इसको इतनी हाइप मिल रही है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है, ये तो कंटेंट नहीं है, इस चीज़ की तो कोई तुक नहीं बनती, तो क्यों सारे इसको इतना वो करें, इतना करें. तो नेगेटिव कमेंट. तो एक तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको कि जो हेट मिल रहा है, एक तो कुछ लोग हैं जिनको समझ नहीं आ रही, दूसरे कुछ लोग हैं जो अगले की खुशी में खुश हो ही नहीं सकते, तीसरे वो लोग होते हैं हु जस्ट हैव टू ब्रिंग पीपल डाउन. वो देखते हैं कुछ अच्छा कर रहा है, क्यों. हमारे पाकिस्तानी में आई थिंक एक चीज़, आई थिंक वी रियली नीड टू डिस्कस. मैंने बहुत इंडियन से बात की है, वो कहते हैं कि हम गूगल में कोई इंडियन काम कर रहा हो, हम कहते हैं हमारे हिस्से का भी काम वो करे, एटलीस्ट इंडिया का तो है ना. हम किसी पाकिस्तानी को काम करते हुए देखें, हम उसकी टांग खींचते हैं कि ये क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ, मेरा भाई क्यों नहीं है. बिल्कुल. तो हमारे में एक ये बहुत, आई थिंक वी रियली नीड टू टॉक अबाउट दिस एंड वर्क ऑन इट. वी आर नॉट हैप्पी फॉर ईच अदर, वी आर इनेटली वेरी जेलस कि इसके साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ. तो एक ये एलिमेंट. दूसरा फिर नफ़ायल ने बहुत मुझे इसमें हेल्प की. बहुत मैगज़ीन्स के उसमें कमेंट्स में मैं चली जाती थी, वहाँ पे अगर हेट होता था, कंपैरिजन हुआ काफ़ी वीडियोस के साथ. कुछ लोगों ने कहा कि दिस वाजंट माय आइडिया, आई कॉपीड इट फ्रॉम अनदर पर्सन, व्हिच वाजंट ट्रू ऑफ कोर्स, एंड आई हैव रिसीट्स फॉर इट कि मैंने कहीं और पहले अपलोड किया था, वहाँ से देखकर किसी ने अपलोड किया अपने प्रोफाइल पे. तो ये काफ़ी सारी चीज़ें. तो डॉना ने मुझे कहा, हर निकनेम इज़ डॉना, तो उसने मुझे कहा कि जीना, दीज पीपल do not matter in the grander scheme of things. They have no substance. जो hate आ रही है, एक तो वो देखो, चलो अगर if you've done something wrong, अगर तुमने कुछ गलत किया है, उस पे hate आ रही है, तो फिर वो देखना बनता है कि यार मैंने ये किया, इस वजह से. How do I self-reflect? How do I exactly. कहते हैं जब ये लोगों का कोई पर्पस ही नहीं है हेट का, तो आप क्यों सुनोगे ऐसे लोगों को, आप क्यों, why would you pay heed to people like this? तो फिर I think she just slowly and gradually, उसने मुझे फोकस नहीं, उसने मुझे कट ऑफ, she sliced the hate off, she kept slicing it off, तो she didn't let me build on it or read it. तो मैंने काफ़ी इग्नोर किया, क्योंकि इतना सारा प्यार, इतनी अप्रिसिएशन एक जगह पे हो, तो why would you focus on 5-10% hate जो आप लोग दे रहे हैं, baseless, substantial hate नहीं है, why would you focus on it? So I think I was just very focused on the positive element of this entire thing. Makes a lot of sense. I think another very very important thing that I'd be very interested in is कि जब आप obviously overnight your situations flip, a lot of people around you tend to flip as well. A lot of people, so एक तो आपके पास वो है ना बॉक्स, जो बंदा बॉक्स में नहीं आ रहा. एक वो बंदा है जो कि आपके साथ कॉलीग था, शायद फ्रेंड्स भी हों, अगेन आई डोंट नो, कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई कॉलीग हो सकता है, कोई इर्द गिर्द के लोग हो सकते हैं. वो लोगों को, और ख़ासकर जो पब्लिक फेसिंग काम होता है ना, उसके ऊपर एवं लोग आके आपको ना चढ़ जाते हैं आपके ऊपर. मेरे साथ ही बड़ी दफ़ा हो चुका है कि जी ऐसे लोग होंगे जिनका मैंने 10 साल से मैं नहीं मिला हूँगा, और मेरा कोई, अगर मैं कुछ ना होता ना, तो उनको मैं याद भी ना होता. लेकिन चूंकि आज मैं कुछ हूँ, तो अब वो आके मुझे हर मोमेंट पे मुझसे शिकायत करेंगे कि यार अब तू इतना बड़ा आदमी हो गया, तू अब मिलता नहीं है आगे. और आप कहोगे कि सर मेरी बात सुने, मैं आपसे बड़ा आदमी होने से पहले 10 साल पहले भी नहीं मिला, और आप भी नहीं मुझसे उस वक्त आके मिले ना. मेरी तरफ से कुछ था ना आपकी तरफ से कुछ था, गिले की तुक नहीं बनती. हाँ, लेकिन अब चूंकि आप सीमिंगली एक पोजीशन पे हैं, suddenly people will start changing themselves. Suddenly when they go around and they comment on you, they will be like यार वो तो मैं जानता हूँ, वो तो ऐसे, वो तो ऐसे. And this sort of negativity, again, बड़ा वो जो एवोल्यूशन होती है ना, वो बड़ी हार्ट ब्रेकिंग होती है, बिकॉज यू डोंट रियली एक्सपेक्ट दैट, इट्स नॉट नेचुरल. डिड यू गो थ्रू दैट? आई डेफिनेटली डिड गो थ्रू इट. मैं तो कितने लोगों की कज़न हूँ जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, गर्लफ्रेंड हूँ जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, एक्स रह चुकी हूँ जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, बेस्ट फ्रेंड्स हूँ जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ. तो मेरी तो फैमिली रिलेशनशिप्स, कज़न, दोस्तियाँ, यारियाँ सबके साथ हैं, जो पीपल हु आई डोंट इवन नो एग्जिस्ट. तो उस चीज़ को तो, और नॉट जस्ट पीपल आई डोंट नो हु एग्जिस्ट, पीपल हु आई नो. देयर सो मेनी पीपल जो मुझे, माई बेस्ट फ्रेंड्स नफ़ायल ने भी मुझे आके कहा कि यार मैंने तो सुना था दैट पर्सन इज सेइंग दैट यू आर देयर बेस्ट फ्रेंड. आई वाज लाइक हु? एंड शी इज़ लाइक वो, डोंट यू रिमेंबर रूट्स में? यार लाइक ओह हाँ वो. तो ये तो मेरे साथ बहुत हुआ है. और दूसरा, आई हैव सीन पीपल चेंज अराउंड मी.
एक तो इनिशियली शुरू से ही मेरा जो एक आपका 3 सर्कल्स होते हैं ना, जो सबसे पहला सर्कल है मेरा क्लोज, उसमें बहुत गिने चुने लोग, आई कैन काउंट माई बेस्ट फ्रेंड्स, माई क्लोज पीपल ऑन माई फिंगर्स, राइट, ठीक है. अच्छा वो लोग सेट होते हैं, वो ना उनको ना आप फर्क पड़ा, जितने ना बड़े उनको किंग कुछ हो परवाह जाए थी. ना, वो अभी मैं कुछ कहूँ वो जूता लेके आ जाते हैं अम्मा की तरह, बेटा क्या उन्होंने आपको देखा होता है एट योर वर्स्ट, वो They've कहते हैं कि seen भाई it. ज्यादा सीधी हो जा. बेटा वी नो यू, हमने तुम्हें देखा है, तुम क्या चीज़ हो, हमें पता है, हमारे सामने नहीं है ड्रामेबाजियाँ करनी. एंड वो लोग बेस्ट होते हैं बाय द वे, बिकॉज आई स्वेयर टू गॉड वो वाले लोग हैं ना, जो मैं उनके बारे में सोचती हूँ ना, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार दैट्स योर सेफ स्पेस. ये सेफ स्पेस है, ये लोग चाहिए जिंदगी में, और ये करीब चाहिए. हाँ. बस इनके अलावा अगर कुछ हो ना हो नहीं फर्क पड़ता, ये हो. राइट, कुछ वो लोग हैं, दे हैवंट चेंज. उसके अलावा जो आपका सेकंड, थर्ड एंड देन दिस एंटायर सर्कल, वहाँ पे तो लोग ऑफ कोर्स हर कोई अपनी मतलब के लिहाज से चेंज हुआ है, हर किसी की प्रायोरिटी, हर किसी का बात करने का तरीका अपने लिहाज से चेंज हुआ है. लेकिन मेरा मसला ये है कि मेरे साथ अगर कोई बुरा करे तो मुझे ज़्यादा नेगेटिविटी मेरी ज़्यादा दिमाग में स्टे नहीं करती. राइट, मेरा कोई एक अजीब सा थॉट प्रोसेस है, वो निकल जाती है, और बहुत नेगेटिव वे में भी मुझे इस चीज़ ने इफेक्ट किया है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव डन बैड थिंग्स टू मी व्हिच आई डोंट रिमेंबर. तो वो एक चीज़ निकल जाती है मेरे ज़हन से, अच्छा, ये याद ही बड़ी नहीं मज़ेदार रहती. बात है. आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट दिस इन अ पॉडकास्ट बिफोर दिस एज वेल. इट्स बेसिकली ना ग्रोथ मेंटालिटी की एक बेसिक निशानी होती है कि देयर आर टू सॉर्ट्स ऑफ पीपल, वन विद ग्रोथ मेंटालिटी, वन विदाउट, एंड द वन विदाउट जनरली ड्वेल ऑन नेगेटिविटी, एंड दैट इज द प्राइमरी रीजन व्हाई दे आर अनएबल टू ग्रो. जो ग्रोथ मेंटालिटी वाला होता है, बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली फ्यूचर को देख रहा होता है, तो वो प्रेजेंट और पास्ट को इतने आराम से थ्रो अवे कर देता है कि उसका माइंड फुली फोकस्ड होता है. सो व्हाइल यूर सेइंग यू नो मे बी इट्स अ बैड थिंग, आई पर्सनली, मेरे साथ एग्जैक्टली यही होता है. मुझे मेरे दोस्त आके बताते हैं कि यार भाई तुझे पता है वो तुझे ताना मार के चला गया, और मैं कहता हूँ यार मैंने तो सोचा भी नहीं, मैं तो उससे बात कर रहा था. हाँ, आई डिडंट इवन थिंक अबाउट इट, ज़हन में नहीं रहा. और इवन इफ यू थिंक अबाउट इट, वो थोड़े पीरियड के लिए हाँ यू थिंक अबाउट इट, हाँ, और फिर भूल जाता है, लिटरली भूल जाता है. तो आई थिंक हाँ इट्स अ ग्रेट थिंग. आपकी ज़िंदगी बहुत आसान रहती है, आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है इस चीज़ से, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी डजंट टेक अप स्पेस इन योर हेड. लेकिन काफ़ी दफ़ा इट्स नॉट अ गुड थिंग इज़ वेल. बुरी इस चीज़ में कि आपको अगला आके वही जिसने आपके साथ कल बुरा किया, वो आपके पास आ जाके कहे कि बेटा हाँ हाउ आर यू, ठीक ठाक, और आपको याद ही नहीं है कि उसने आपके साथ बुरा किया है, एंड यू आर जस्ट लाइक उसी फ्लो में जा रहे हो. हाँ, तो लेकिन इट्स ऑल इन ऑल इट्स अ गुड, इट्स अ ब्लेसिंग, आई वुड से इट्स अ ब्लेसिंग 100%. मुझे ये बताएं कि व्हाट्स, आई मीन आई हैव अ कपल ऑफ अदर थिंग्स एज वेल, बट दिस इज जो एक हमेशा वो होता है ना, सोच दिमाग में आता है कि यू नो आई लुक एट योर इंस्टाग्राम एंड आई लुक एट द 1.4 मिलियन, एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, अगेन मैं बार बार ये कहूँगा कि मैं थोड़ा सा साइकोटिक सा हूँ, कि मैं द वे दैट आई सी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स एंड वो सब थोड़ा डिफरेंट होता है. व्हाट्स नेक्स्ट, नॉट इन टर्म्स ऑफ के यू नो अच्छा वाओ यूर अ सेलिब्रिटी, मैं उसका फ़लसफ़ा समझना चाह रहा हूँ. ठीक है, कंटेंट क्रिएटर जो होता है ना, वो नंबर्स पे खेलता है. देयर आर गोल्स जिसमें आप करते हो कि आपके लिए एक इंडस्ट्री है. जिस तरह एक बिजनेस जॉब में एक बंदा होगा, वो कहेगा यार मैं वीपी बन जाऊँ, या मैं सी लेवल से बन जाऊँ, मैं चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बन जाऊँ, या मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाऊँ. कंटेंट की या डिजिटल की या मीडिया की जो इंडस्ट्री है, उसके अंदर आपके पास 10,000 वाला माइक्रो इन्फ्लुएंसर भी होता है, आपके पास 100,000 वाला यू नो एक इन्फ्लुएंसर भी होता है, मैक्रो इन्फ्लुएंसर जिसको कह लें, और फिर 1 मिलियन वाला मेगा इन्फ्लुएंसर भी होता है. एंड दैट्स जनरली द बेंचमार्क ग्लोबली कि जी 1 मिलियन आपने क्रॉस कर लिया, सो इट्स ठीक है, हो गया. एंड आई हैव सीन वे टू मैनी कंटेंट क्रिएटर्स जो कि काफ़ी दफ़ा तो बहुत साल लगाते हैं, वो 1 मिलियन जैसे ही होते हैं ना, तो दे सडनली लूज साइट ऑफ थिंग्स, दे लूज देयर माइंड्स, बिकॉज फॉर सो लॉन्ग यू फोकस्ड ऑन दिस आइडिया ऑफ ये अचीव करना है, उससे आगे आपने देखा ही नहीं. एग्जैक्टली. एंड नाउ यूर सो ठीक है, अभी स्टार्ट में आप देखते हैं, आप कहते हैं यार आप इंजॉय कर रहे होते हैं कि ठीक है, यू नो देयर आर सो मेनी पीपल, इन्फ्लुएंस, सारा का सारा, बिकॉज एज अ ह्यूमन माइंड यू आर अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ दिस, राइट? यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस न्यू realm of reality that you're in. Yeah. And you're participating in it, you're enjoying it, you're evolving with it. But after a certain amount of time, it becomes a thing. Like that's what it is. Yeah. Right? And that's the new normal. Do you think that new normal is here now? Or do you think you're still sort of trying to explore? Oh, definitely trying to explore. I think एक बहुत नेगेटिव चीज़ होगी कि मैं सोचूं अच्छा ये अचीव हो गया, अब बैठ जाओ, अंडे दे दिया, अंडों पे बैठ जाओ. हाँ. नहीं, there are so many things in my personal interest and other things that I have yet to explore.
एक तो मेरा ये सिंगिंग का एस्पेक्ट है. Right. I'm working on my own songs. Oh, very cool. Yes, I'm coming out with new songs, inshallah, soon after Eid. एक वो चीज़ मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ. I really want to see content creation, so that is something that I have been doing. Right. I wanted to explore, I wanted to expand my avenues. Because acting वाली साइड पे मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो I अभी फ़िलहाल के लिए I am steering clear from that. Not, there's no certain, no big cross on it. Of course, that is something that I Maybe would at want some- to yeah. explore in the future sometime. If a good opportunity comes across, but not something that I would want to do in the near future. But singing is something that Yeah. something that I think I would love to do on a professional scale. And because of I've garnered a lot of appreciation, तो एक होता है ना आपको motivation, innate सी motivation आ Confidence जाती है. मिलता है आपको. Confidence मिल जाता है कि बिल्कुल. हाँ, the audience does seem to like my content, Yeah. singing content, so why not explore that? And I've come across a lot of like-minded people who've helped me explore this, this new aspect of my life. I would love to explore my mind. I would love to explore my own individuality, see what I can do, what I can't do, what I like to do, what resonates with who I am, and just keep evolving, not Right. just not stay stagnant, right? Yeah. Not stay in one position कि हाँ चलो बस बहुत कर लिया, इतना फेम मिल गया, इतना वो सारा हो गया, अब बस नहीं. I definitely want to move forward, explore different avenues in life, meet new people, travel a lot, and I'm also starting my own brand soon. Oh, so zabardast. I'm exploring that as well. Can we थोड़ा सा आप बता सकते हैं किस इंडस्ट्री में? I don't want to get into too much detail. So it's makeup and skincare. Ah, very cool. Makeup and Very skincare. cool, That very is something that I genuinely resonate with. Right. So I'm definitely exploring things that are truly something that screams me. Right? तो ये जैसे makeup and skincare brand है, it's called Neer by Dana Neer. Right? So it's coming out soon. I think I saw the page as well somewhere. Yeah. I've made the page. So it's all happening. I've registered the company, done the legalities. I'm just working on the product. I'm using the product myself to see, to really grasp the concept of making your own brand, building your own brand. I really want to connect with my brand, right? ये नहीं करना कि बना लिया, कंपनी बना दी, नाम पे बेच दो. नाम पे बेच दो. 10 लोग बेच सकते हैं, but it's वो sustainable नहीं होता. Sustainable नहीं होता. I want to connect with it. I want it to be me. Right. So I'm working on my brand. I'm also working on my songs. So these are certain things that I'm exploring as of now. But I'm not restricting my avenues just to this. Inshallah, in the near future, I will see or come across something that I resonate with and explore that, and then something else, and then something else. So I'm definitely going to keep exploring. Right. अच्छा, एक चीज़ मैंने I've mentioned this on another podcast as well with another content creator, and I पता नहीं क्या बात हुई और उसके ऊपर they brought up the Pari girl. I don't know. You can see. But उसमें मेरा बेसिकली ये था कि जो आपने गूगल वाली बात बोली थी ना, उसमें मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी थी कि यार पाकिस्तान में दना नीर 1 मिलियन क्रॉस करती है, पाकिस्तानी ये सोच रहा है कि ये 1 मिलियन क्यों क्रॉस कर रही है. अच्छा, सोच में डिफरेंस क्या हो सकता है? मेरे लिए क्या इंटरेस्टिंग चीज़ थी जब आप इंडिया गई पर्टिकुलरली, तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि, और मैं बड़ा ज़ाहिर एज अ सीरियस उस तरह से मेरे लिए ये था कि यार वाओ, लुक एट हर बॉर्डर्स किस तरीके से जो है ना, शी इज़ इरेजिंग दोज बॉर्डर्स थ्रू द ह्यूमन एलिमेंट. आई थिंक इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट इट इन अ नेगेटिव वे, जिसमें मैं कहूँ कि यार दना नीर 1 मिलियन क्यों क्रॉस कर गई, मैं इसको पॉजिटिवली इस तरह देख सकता हूँ कि मे बी नाउ दना नीर हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू कम्पीट ग्लोबली, एंड नाउ I can have someone from Pakistan represent us internationally. Exactly. Someone who people can recognize. Yeah. Someone who people can connect to, and they know. Jaise ab if Netflix wants to work with us, and if any international organization wants to work with us, I can be someone who can represent us internationally. Exactly. This is what has happened. You guys know me. This is my country. Yeah. These are my people, and this is what we're capable of. Right? They have my back, and this is what we're capable of. This is what we can do for you. This is what we can do for the world. Because we have so much capabilities, we have so much talent, we have so much potential. So I think rather than आपकी वही perspective का एक वो बात है ना, perspective shift करने की बात है कि आप rather than ये देखो कि क्यों, आप ये देखो अब how can this help or benefit our country. क्योंकि एक बहुत बड़े लेवल पे बात चली गई है ना, तो आप उसको उस सेंस में भी देख सकते हो कि how can this help us in the future. अब हमारे जो content creation की जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, how can I help shape that
एग्जैक्टली इंटरनेशनली. अब Exactly. मैं इंटरनेशनली क्या इमेज पोर्ट्रे करूँगी अपने कंटेंट क्रिएटर्स का. आई कैन लिटरली आई वांट टू, बिकॉज मेरा ये है कि आई डोंट वांट ऑल ऑफ दिस अलोन. आई वांट people who have talent, who have potential to be with me. I want to grab their hand and I want to move forward with them alongside. Because nobody wants to be alone, यार. It's very lonely. It's Yeah, very it's very very lonely. lonely. And क्या आप क्या कर लेंगे अकेले करके? क्या कर लोगे अकेले? हाँ. At the end of the day, it's what matters is the people who are around you. Yeah. So I think that is very important. वही perspective shift. It's क्योंकि वो पाकिस्तान में वो हम कुएं के मेंढक की तरह है ना, कि पाकिस्तान से कोई थोड़ा सा कोई जैसी मेंढक थोड़ा ज़्यादा छलांग लगाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि भाई तू क्यों जा रहे हैं, वापस आ जा. आप थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंड कर लें कि अगर वो मेंढक बाहर निकल गया और उसने जाके बाहर की दुनिया देख ली और उसने आके आपको भी बताया कि भाई मुझे पता लग गया किस तरह बाहर निकलना है, तुम लोग भी सारे के सारे चलो मेरे साथ चलो. आई थिंक दैट्स इनक्रेडिबली पावरफुल, स्पेसिफिकली बिकॉज हम कॉन्स्टेंटली इस बात का रोते हैं कि वेस्ट और ग्लोबल दुनिया जो है वो हमें देखती है कि हम कंजर्वेटिव से ऊँटों पे चलने वाले, मट्टी के घर में रहने वाले लोग हैं. तो भैया वो कैसे बदलेंगे अपना परसेप्शन, मुझे ये बता दें. एग्जैक्टली. वो जो आधी इंडिया की जनता को पहली दफ़ा पता लगा कि भाई पाकिस्तान एक्चुअली ऐसा है. मुझे कितने लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि ओह यू आर अ गर्ल फ्रॉम पेशावर हु इज डूइंग दिस, इज योर फैमिली ओके विद व्हाट यू आर डूइंग, डू गर्ल्स डू दिस इन योर कंट्री. तो एक आप सोचिए ना, लोगों का वो पर्सपेक्टिव है हमारे बारे में. तो इफ आई कैन स्पीयरहेड अ मूवमेंट इंटरनेशनली फॉर द पीपल ऑफ माई कंट्री, फॉर आवर जनरेशन, what is wrong with it? Why bring me down? I think हमें empower करना चाहिए एक दूसरे को. अगर एक opportunity है, we should build on it. 100%. अब हम अभी बैठ के ये रो रहे हैं कि Instagram हमें रील्स नहीं दे रहा. हम थोड़ा सा ये भी सोचे ना कि हम इंटरनेशनली जाएंगे, हम रिकग्नाइज होंगे इंटरनेशनली, तो आई थिंक तब वो जाके अंडरस्टैंड करेंगे हाँ अच्छा पाकिस्तान में भी पोटेंशियल है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मार्केट, यहाँ पे भी आना चाहिए. तो आई थिंक इस तरह का कुछ होगा इंटरनेशनली, हम जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, एक दूसरे को एम्पावर करेंगे, तभी ये हो सकेगा. बिल्कुल 100%. कोविड का टाइम है, जाहिर है यू कांट ट्रैवल अ लॉट, बट is there something that's in the works for internationally? Did you get any offers? Are you planning something? Again, I really want to see you definitely in campaigns that are beyond Pakistan. I think the potential is there. I think you do a disservice to yourself and your mind. अगर आप सिर्फ again पाकिस्तानी करें अच्छी बात है, but सिर्फ पाकिस्तानी करें. Yeah. So what's the future on that front? So the thing is, there was a lot of things that came trickling through India. Right. लेकिन प्रॉब्लम ये था बिकॉज कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हुआ था. ऑल्सो बिकॉज माई पेरेंट्स आर वेरी कंसर्न्ड बिकॉज उनको खुद भी कोविड हुआ था एंड दे वेंट थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम. हाँ, तो अपॉर्चुनिटीज़ डिड कम इन, बट बिकॉज ऑफ कोविड, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस एंड पर्सनल रिस्ट्रिक्शंस, I couldn't jump on it. लेकिन as soon as things get better इंशाल्लाह. अभी थोड़ा सा कोविड इज द मेन प्रॉब्लम, राइट? बहुत सारी जा ही नहीं रहा, बस कर दो. जाएंगे एक वेव, फिर दूसरी वेव, फिर तीसरी वेव, फिर चौथी वेव, जा ही रहा है ना मेरे ट्रेंड की तरह बूम जा रहा है. तो थोड़ा सा वो बेहतर हो, तो आई एम डेफिनेटली लुकिंग टू अपॉर्चुनिटीज़ थी, बट बिकॉज कोविड वो नहीं, इंशाल्लाह आई एम क्वाइट सर्टेन वो फिर आ जाएंगी. अगेन you had this conversation before the trend as well कि चीज़ें आती जाती हैं, अप एंड डाउन होती हैं. You just rightfully said on the conversation as well कि trust in अल्लाह ताला, और वो आपको जो है तवक्कुल होना चाहिए आपके. 100%. Dananeer, thank you so much for coming in. Thank you for having me. This was a delightful conversation. You took me down a very sentimental pathway, mindset. What would you call it? And I haven't been there for quite some time because I haven't had the time to sit down and think about what was happening, or I still haven't thought about what was happening. So what had happened. So thank you for taking me down that path. Thank you for sparking those memories. It was a delightful journey. Thank you so much for the conversation and for all the insight, and I wish you absolutely all the best. Thank you very much. You're a very very smart young girl. You're incredibly talented. मुझे पता है कि अगेन बहुत सारे लोगों ने आके उस टाइम पे ये बोला कि यार ये अच्छा इतनी ज़्यादा अटेंशन क्यों मिल गई. अभी तो एक वीडियो की वजह से मिली है, बट आई नो व्हाट यू आर केपेबल ऑफ. आई नो कि द वे दैट यू आर गोइंग टू कन्वर्ट these 1.4 million people into some definitely more empowered, more smarter, more intelligent people.
that is the reason why you have that following, and I hope inshallah I see incredible things coming out from Thank your you end. so much. Thank you. For all of you guys, thank you so much for watching. If you like this conversation, please do share it with your friends. Don't forget to like, comment and subscribe and don't forget to hit the bell icon. Yes, do that as well. मेरी तो आधी बातें बोल ही दी हैं, पर ऑडियो प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. इसी के साथ साथ देयर इज़ अ फेसबुक ग्रुप नीचे TBD कम्युनिटी का, जहाँ पर हम जो है वो इस तरह की कॉन्वर्जेशंस भी करते रहते हैं, आपका फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिक्वेस्ट्स भी लेते हैं, और इसी के साथ साथ आई engage every now and then, share some articles, so you can join that community if you'd like. But anyways, this was Sayyid Madhamin Hassan Zaidi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.